Hello दोस्तों, how are you? I am Hemant and today we will see some aptitude questions for upcoming examination. Right? It is a type of mock test for upcoming examination. So we will see some 100 questions related to logical reasoning and also quant aptitude, right? And data interpretation, right? So let's start today's session. I am sharing. um, Okay, so we'll start this session now. Right, so we'll see some aptitude question. Aptitude, aptitude question. Basically, logical reasoning रहेगा. Logical reasoning, quant रहेगा. Quant. DI, data interpretation, and reading comprehension. Reading comprehension. ये also. Right, basically, we'll see aptitude question in this session. Right. So let's start it. So first question for this question will be first question passage type of question, passage. Right. Passage question. पैसेज रहेगा यहाँ पे पैसेज, मतलब रीडिंग कम्प्रीहेंशन बोलते हैं इसको, रीडिंग कम्प्रीहेंशन. पैसेज जो रहेगा उसका मतलब क्वेश्चन फिर हम लोग को सॉल्व करना है. जो पैसेज को पढ़ के जो पैसेज है उसी में उसका आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन का आंसर. तो उसको हम देखते हैं. तो एक पैसेज है, पहले पैसेज दिया है. पैसेज दिया है, ठीक है. इसका इसमें मैं रीड कर रहा हूँ, जो पैसेज दिया था उसको रीड कर रहा हूँ. वन ऑफ द dismal realities of the agriculture sector in independent India has been that it never experienced a high growth phase. तो ये पहला ये unlike the non-agricultural economy, the highest decadal growth compound annual growth rate or CAGR for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from the 1980s to 2000. तो यहाँ पे बेसिकली पैसेज जो एक दिया है में बात हो रही है एग्रीकल्चर का. एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, यहाँ पे दिया है.
तो इसमें उसका पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द corollary to the above passage? Which one of the following statement best reflects the corollary to the above passage? ठीक, जो पैसेज दिया है उसमें से बताना है कि जिसमें ए बी सी डी चार ऑप्शन है, उसमें से स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द corollary to the above passage। ठीक है, मतलब उसको corollary मतलब उसको बता रहा है, जो मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पे पैसेज में दिया है ना, उसमें से कौन से सही से बता रहा है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहले पैसेज को लिख देते हैं। वन ऑफ द वन ऑफ स्मॉल varieties of the agricultural sector in इसको ऐसा नहीं, ठीक है, रीड कर देते हैं। वन ऑफ द डिसमल रियलिटीज, इसको ऐसा one of the dismal realities of the above agriculture sector in independent India has been that it never experienced a high growth phase. Unlike the non-agricultural economy, the highest decadal growth compound annual growth rate or CAGR for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation. Thereafter, this is in sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from the 1980s to 2000. Which one of the following statement best reflects the corollary to the above said? The benefit of economic reform percolates down more slowly to the agriculture sector than in other sector of the economy. For India, the Green Revolution was not as useful as it was expected to be. India lagged behind other countries in adopting mechanized and modern farming. Rural to urban migration resulted in the stagnant agriculture sector. ये दिया है। स्वतंत्र भारत में कृषि क्षेत्र की निराशाजनक वास्तविकताओं में से एक यह रही है कि इसमें कभी भी उच्च समृद्धि की स्थिति नहीं आई, जैसा कि गैर कृषि अर्थव्यवस्था में हुआ। इसी के लिए उच्चतम दशकीय समृद्धि चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर या CAGR 1980 के दशक में मात्र 3.5% रही है। यद्यपि 1980 के दशक के दौरान दशकीय समृद्धि में एक उछाल आया, तथापि इसके उपरांत कृषि समृद्धि में अपेक्षाकृत प्रतिरोधी बना रहा। यहाँ गैर कृषि समृद्धि के जो क्योंकि 1980 से 2000 तक के दशकों में लगातार बढ़ती रही है, ठीक विपरीत एक सुस्पष्ट विषमता दिखाई देती है। इनमें से कौन सा एक कथन उपयुक्त परिच्छेद के निगमन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है? ये क्वेश्चन है। हम्म, आर्थिक सुधार का लाभ अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में धीमी गति से नीचे पहुंचता है। भारत के लिए हरित क्रांति उतनी उपयोगी नहीं हुई जितने उसके होने की अपेक्षा थी। भारत यंत्रीकृत और आधुनिक कृषि को अनुकूलित करने में अन्य देशों से पिछड़ गया। गांवों से शहरों में होने वाले प्रदूषण के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में गतिरोध आया। Which one of the following statement best reflect the corollary to the above passage? The benefit of economic reform circulates
विच वन ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे एक बार और पढ़ते हैं, नोट लिखते हैं। One of the dismal realities of the agricultural sector in independent India has been that it never experienced one of the dismal realities of the agriculture sector in India has been that it never experienced a high growth phase to basic prelims question paper. Yeah, one of the dismal realities of the agriculture sector in independent India has been
that it never experienced a high growth phase, unlike the non-agriculture economy. The highest decadal growth compound annual growth rate or CAGR for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from 1980 to 2000. Which one of the following statement best reflects the corollary of the above passage? ये तो जो क्वेश्चन की बात कर रहा था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सेक्शन के। एक पैसेज दिया है पैसेज वन ऑफ द डिसमल रियलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैज बीन दैट it never experienced a high growth which unlike the non-agriculture economy. The highest decadal growth compound annual growth rate of CAGR for agriculture has been just 3.5% in 1980s. Also, after experiencing spurt decadal growth during the 1980s, agriculture growth suffered relative stagnation thereafter. This is in sharp contrast to non-agricultural growth, which consistently increased from 1980s to 2000. 2000, which one of the following statement best reflect the corollary to the above passage? corollary यहाँ पे corollary जो देखते हैं मीनिंग ऑफ corollary. Spurt meaning spurt meaning SPURT spurt meaning. तो इसका मतलब जो पैसेज से यहाँ पे जो कोरोलरी जाना है इसका मतलब जो पैसेज से वो सही है मतलब वो डायरेक्ट बता रहा है। पैसेज से हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं वो बताने के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट which of the following statement best reflect the corollary to the above passage? The benefit of economic reform
percolates down more slowly the agriculture sector than in other sector of economy. For India, the Green Revolution was not yet full as it was expected to be. India lagged behind other countries in adopting mechanized and modern farming. Rural to urban migration resulted in the stagnant agriculture sector. The benefit of economic reform percolate down more slowly to the agriculture sector. Then A is the correct answer for this question. The benefit of economic reform percolate down more slowly to the agriculture sector than in the sector of the economy. क्योंकि इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। पहले पैसेज दिया था, पैसेज 1। पैसेज दिया था, पैसेज 1 ऑफ द डिसमल रियलिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन independent India has been that it never experienced a high growth phase like the non-agriculture economy। इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दो सेक्टर इकोनॉमी है ना। एक एग्रीकल्चर सेक्टर होता है और एक नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, दो सेक्टर में इसको डिवाइड कर दिया है। दोनों के बारे में बात हो रही है। और मतलब क्या बोला है कि the highest decadal growth, compound annual growth rate or CAGR for agriculture has been just 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing spurt in decadal growth during the 1980s, agricultural growth suffered relative stagnation after thereafter। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है ना वो सफर किया, मतलब अच्छा से ग्रो नहीं कर पाया। दिस इज इन शार्प कंट्रास्ट टू नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ। कंट्रास्ट है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है तो उसके बारे में तो विच कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम 1980 टू 2000। 1980 2000 बीच में जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रोथ किया था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ नहीं किया था। तो ये सब के बारे में बात हो रही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी टू द यहाँ पैसेज। कोरोलरी मतलब बता रहा है, रिफ्लेक्ट इस पैसेज को पढ़ने में सही जो हमको समझ में आ रहा है वो क्या है, इंफ्रेंस मतलब वो बताना है। So the benefit of economic reform percolates down more slowly to the agriculture sector than other sector of the economy। ठीक, the benefit of economic reform, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था उसका बेनिफिट डाउन मोर स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए थे क्योंकि मतलब स्लोली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर में धीरे धीरे उसका मतलब बेनिफिट मिला और देन इन अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तभी तो जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ है वो क्या है, वो मतलब सफर किया। और जो नॉन मतलब एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो सफर किया, और नॉन एग्रीकल्चरल ग्रोथ है वो क्या है, मतलब इंक्रीज हुआ उसका कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम 1980 टू 2000। इसीलिए अब इसमें एक पहला ही सही होगा जो कि फॉर इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, जबकि इसमें तो बोला ही नहीं इसके बारे में। इंडिया लॉग लेट बिहाइंड द अदर कंट्रीज इन अडॉप्टिंग मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्न फार्मिंग। अदर कंट्रीज के बारे में भी बात नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ये उसके थर्ड में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रिजल्टेड इन स्टेगनेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें रूरल टू अर्बन माइग्रेशन माइग्रेशन के बारे में भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। जो इंफ्रेंस मिल रहा है इस पैसेज को पढ़ने के बाद वो पहला ही पॉइंट है जो कि सही बता रहा है, मतलब जो पैसेज में दिया है वैसा ही इसको इस ऑप्शन में बताया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड पैसेज। सेकंड पैसेज है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन डन है, इस टेंशन सॉल्व करेंगे इसको। तो उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया इसी पैसेज, इसमें इस पैसेज में दो क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
जो पैसेज अभी जो था ना एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है पैसेज से, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2। With reference to the passage, with reference to the passage, the following assumption have been made। ठीक है, इसमें पहला वाला इंफरेंस था, इसमें दूसरा वाला एजम्पशन। ठीक है, द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन द फॉर्चून्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन इंडिया would have been reduced contained by, पहला adopting large scale cultivation of commercial crop and viable corporate farming। second है providing free insurance for all crops and heavily subsidizing seeds, fertilizer, electricity, and farm machinery at work with developed countries। Which of the above assumptions is are valid? तो ये assumption जो दिया गया था, with reference to the passage, the following assumptions have been made। कि जो पैसेज को बनाने के पहले जो assumption किया गया था ना, जो assumption मतलब जब एज्यूम किया गया था उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एबव assumption इज आर वैलिड, कौन सा जो assumption है वैलिड है। जो स्टेटमेंट ऊपर का जो स्टेटमेंट बनाया गया है ना, उसके लिए कौन सा है इसमें से जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है, मतलब द ग्रोइंग डाइवर्जेंस, the difference between the following assumptions have been made। The growing divergence between the fortunes of the agriculture and non-agriculture economy in India could have been reduced contained by first adopting large-scale cultivation of commercial crops and viable corporate farming, second providing free insurance for all crops and heavily subsidizing seeds, fertilizer, electricity, and farm machinery at par with developed countries। मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं उसके हिसाब से यहाँ पे फ्री इंश्योरेंस और ऑल क्रॉप्स देना देना दिया जाता है, रिलीज सब्सिडाइजिंग सीड, सीड में जो बीज है उसके लिए फर्टिलाइजर है, इलेक्ट्रिसिटी, फार्म मशीनरी, इसके लिए यहाँ पे मतलब जो डेवलप कंट्री जो देता है वैसा इसमें प्रोवाइडिंग फ्री इंश्योरेंस। उसके बाद क्या बोला, अडॉप्टिंग लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप एंड वायबल कारपोरेट फार्मिंग, प्राइवेट कारपोरेट फार्मिंग के लिए जो दो चीज, द ग्रोइंग डाइवर्जेंस बिटवीन द फॉर्चून्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन इंडिया would have been reduced। The growing divergence between the fortunes of the agricultural and non-agricultural economy in India could have been reduced content by growing, जो ग्रो नहीं हो रहा था ना, डाइवर्जेंस है, ग्रोइंग में डाइवर्जेंस हो रहा है बिटवीन द फॉर्चून्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी। नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ग्रोथ हो रहा है लेकिन एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो जो डाइवर्जेंस है वो कुड हैव बीन रिड्यूस कंटेंट, reduce content, which is adopting large scale cultivation of commercial crops, adopting large scale cultivation of commercial crop in viable corporate farming, providing free insurance for all crop and heavily subsidizing seed, fertilizer, electricity, and farm machinery for with country which of the above assumptions is are valid। कौन सा assumption valid है। both one and two, neither one not two। तो दोनों एजम्पशन को किया गया था ना, तभी तो स्टेटमेंट मेट किया था। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा नाइदर, नाइदर वन नॉट डी आएगा। ठीक, नाइदर वन नॉट डी। तो स्टेटमेंट लिखने के पहले दोनों को यहाँ पे एजम्पशन किया गया था। दिस एजम्पशन
नदर वन एंड नॉट टू, क्योंकि दोनों रिलेटेड है ये सब। ये दोनों पॉइंट जो है मतलब अगर किया रहता, अगर ये चीज किया जा रहा था अगर तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी ग्रोथ हो रहा था। इसलिए स्टेटमेंट लिखने से पहले ये दोनों को यहाँ पे एजम्पशन किया गया था। तो इस टाइप से ये जो इन्फ्लुएंस है, एक पैसेज से इन्फ्लुएंस हमें क्या पता चल रहा है उसके बारे में था, और दूसरा उस पैसेज को लिखने के पहले क्या एजम्पशन किया गया था, दोनों के बारे में था ये। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने इस सेशन में देख लिया है। अब इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। तो एक पैसेज के बारे में दो क्वेश्चन दिया था, उसके बाद जो है पैसेज टू है, दूसरा पैसेज भी दिया था। दूसरा पैसेज है पैसेज टू। पैसेज टू जो दिया था, इन our in our country, handlooms are equated with a culture that ensure a continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. The notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. The narratives dominant in defining culture tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of a large section the discounted and at times forcefully stifled identities or fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large sections of our population choose to ignore it. इस टाइप से दूसरा पैसेज है, दूसरा पैसेज इसमें बेसिकली हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में, हैंडलूम इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दो क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। तो सेकंड जो पैसेज है आज के सेशन में, सेकंड पैसेज जो पैसेज टू देखते हैं। पहले क्या है इसके बारे में, पैसेज टू। पैसेज टू दिया है, इन आवर कंट्री भारत में हैंडलूम्स आर equated with a culture that ensures a continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and ठीक है। In our country, handlooms are equated in our country, handlooms are equated with a culture that ensure a continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. But the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. The narratives dominant in defining culture, tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of large sections, the discounted and at time possibly stable identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of our population choose to ignore it. ये इस टाइप से यहाँ पे दिया है message. Which one of the following statement best reflect the most logical and rational message conveyed by the author of the passage? Which one of the following statement best reflects
and most logical and rational message conveyed by the author of the passage. जो इस पैसेज को लिखा है इसमें मतलब इसमें मैसेज क्या दिया है, कन्वे क्या कर रहा है, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज कन्वेड पैसेज लिखने के लिए ऑथर ने क्या किया है वो बताना है। पहला ऑप्शन है वी नीड to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage. Second, continued state support to the handloom industry ensure the preservation of some of our glorious art forms and old traditions. Third, household units of the handloom sector should be modernized and made an economically viable organized industry. Handloom products need to be converted to machine-made designer products to make them more popular. इसको बार ऑडिट करना पड़ेगा। In our country, handlooms are equated with a culture that ensure continuity of tradition. Idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. The notion of the tradition as a single linear entity is being strongly contested today. The narratives dominant in defining culture or tradition in a regular way are seen to have emerged as the identities and histories large sections, discontinued and at times possibly stable identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of our population choose to ignore it. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, traditional culture दो चीज बारे में हो रहा है, traditional परंपरागत culture संस्कृति कि not surprising that large section of our population choose to ignore it. यहाँ पे in our country handlooms are equated with a culture that ensure a continuity of tradition. Culture है continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. But the notion of the tradition as a single linear entity being strongly resisted today, the narrative dominant in defining culture or tradition in particular way are seen to emerge as the identities and histories of large sections. Discontinued and at times forcefully statistical identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of our population choose to ignore it. Which of one of the following statements basically most logical and rational message conveyed by the author of the passage? We need to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage. Continued state support to the handloom industry ensure preservation of some of our glorious art form and old tradition. Household unit of the handloom sector should be modernized and made an economically viable organized industry. Handloom products need to be converted machine-made designer. We need to free the handloom industry from the limited narrative linked to preserving cultural heritage. यही आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर थर्ड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड इमेज कन्वर्ट टू आधार ऑफ द करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री को स्वतंत्र करना है फ्रॉम लिमिटेड नैरेटिव, जो गलत इसमें विचारधारा है, लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है उसको मतलब करना है। इसमें दूसरा में क्या, कंटिन्यू स्टेट सपोर्ट द हैंडलूम इंडस्ट्री इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ सम ऑफ ग्लोरियल आर्ट फॉर्म, इसके बारे में नहीं दिया है, आर्ट फॉर्म इसके बारे में नहीं दिया। हाउसहोल्ड यूनिट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज एंड मेड एन इकोनॉमिकली वायबल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री। मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात नहीं हो रही। हैंडलूम प्रोडक्ट नीड टू कन्वर्टेड, कन्वर्जन के बारे में बात नहीं हो रही। इसीलिए करेक्ट इन्फ्रेंस जो मतलब जो ऑथर है वो यहाँ पे कन्वे मैसेज कन्वे कर रहा है, वी नीड टू फ्री द हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नैरेटिव इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डन है। उसके बाद
नेक्स्ट दूसरा इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें दूसरा भी क्वेश्चन है, पैसेज है तो इसमें दूसरा क्वेश्चन इसका है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी है। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। ठीक है, तो मतलब जो पैसेज, इस पैसेज को बनाने के लिए जो एजम्पशन किया गया है, तो पहला एजम्पशन है, देयर इज नो नीड फॉर द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन एनी मैनर इन द हैंडलूम सेक्टर। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन द rapidly changing modern world. Handloom products are no longer appealing and attractive in the rapidly changing modern world. Which of the above assumptions are valid? ये जो assumption है, कौन कौन सा assumption जो है वो valid है वो बताना है। किंतु इसमें assumption क्या क्या मेट किया गया था, देयर इज नो नीड फॉर द स्टेट टू involved in any manner in the handloom sector. No need for the state to be involved in any manner in the handloom sector. इसका थोड़ा बात हो रही है, क्या थोड़ा ये, there is no need for the state to be involved। ये जंक्शन नहीं है क्योंकि स्टेट तो इन्वॉल्व होगा ना। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर appealing and attractive in the rapidly changing modern world. Handloom products are no longer appealing and attractive in the rapidly changing modern world. हम्म, ये जंक्शन नहीं क्या, जंक्शन दूसरा जंक्शन नहीं लगेगा। हैंडलिंग, there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector. अदर वन आपको जंक्शन मेट क्या, there is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector। ये इसलिए जंक्शन किया गया होगा। हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। ये दोनों जंक्शन किया गया। ये दोनों मतलब ये दोनों जंक्शन लिया गया है पैसेज बनाने के लिए। दोनों जंक्शन लिया गया है ना, देयर इज नो नीड फॉर द स्टेट टू बी इन्वॉल्व इन मैनर इन द हैंडलूम सेक्टर। तो स्टेट को, जो स्टेट है वो मतलब इन्वॉल्व नहीं करेगा, ऐसा जंक्शन करके स्टेट में दिया गया था। और हैंडलूम प्रोडक्ट्स आर नो लॉन्गर अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव इन द रैपिडली चेंजिंग मॉडर्न वर्ल्ड। अभी का जो वर्ल्ड है उसमें हैंडलूम प्रोडक्ट का ज्यादा उसमें रोल नहीं, तो उसका ऐसा एजम्पशन करके इस स्टेट में बनाया गया। क्योंकि पैसेज इस टाइप से हम लोग इन्फ्रेंसेस एंड जो एजम्पशन, उस पैसेज को बनाने में क्या एजम्पशन किया गया था और उस पैसेज से हम लोग क्या इन्फ्रेंस मिल रहा है, क्या मैसेज कर रहा है जो आकर लिखा है, तो उस पैटर्न का 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है और ये पैसेज टाइप है। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमको। क्वेश्चन नंबर 5, consider the first 100 natural number. How many of them are not divisible by anyone of 2, 3, 5, 7 and 9? ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। Consider the first 100 natural number. How many of them are not divisible by any one of 2, 3, 5, 7 and 9? ठीक है, इसलिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, उसमें से बताना है हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2, 3, 5 एंड 9। मतलब देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये से लेकर 10 तक का देख लेते हैं। So क्योंकि हो जाएगा 2, 3, यानी हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ 2, 3। तो ये तो डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 5, 4 भी डिविजिबल है, 5 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है,
7 डिविजिबल है, 8 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल, 10 डिविजिबल, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 है, 19 एक नहीं, इसीलिए नहीं है 19, 18 है, 17 नहीं, 17 किसी से नहीं है, 14 है, 13 ये भी किसी से नहीं है, 11, 11 भी किसी से नहीं है, क्योंकि इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये है 29, 29 नहीं है, 30 अवेलेबल नहीं है, 28 है, 27, 26, 25, 24, 23 नहीं है, 22 है, 21, 21, ये हो गया। उसके बाद 21, 32, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक है तो 21 किसी से नहीं है, 32 है, 33, 40 है, 35 नहीं है, 40, 40 में सब। उसके बाद 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 50, 67, 50 है, 47 नहीं है, ऐसे में 40, 45, 40 नहीं है, 40 में भी ये है। उसके बाद कॉमन बॉन्ड स्लॉट ए है, 59 नहीं है, 58 है, 57 भी नहीं, इकसठ, बासठ, तिरसठ, चौसठ, सड़सठ नहीं, इकसठ नहीं, उसके बाद 51, 52, स्टार से आना, ठीक है फिर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ये होता है 3 3 5 7 5 12 ठीक। 3 23 टोटल हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23। नहीं ये भी नहीं। ठीक 18 8 1 9 3 से जाएगा ना इसका 22। ये भी 81 भी कटेगा। ये भी नहीं आएगा। 22 हो गई टोटल मार्क्स। ठीक है 22 हो जाएगा। ठीक है स्टार से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी का क्वेश्चन था इसको थोड़ा ठीक है ये समझ सकते हैं जो मतलब हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाई एनी वन ऑफ 2 3 5 7 9 कौन डिविजिबल नहीं होना चाहिए तो इस टाइप से है कि कौन कौन सा है जो कि 2 3 5 7 9 डिविजन नहीं होगा। 79 73 71 67 61 तो ये है इस टाइप से काउंट करते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टोटल 22 हैं ये सर 2 3 5 7 एंड 9 से डिविजिबल नहीं होगा इस टाइप से होती है तो 22 से जो है वो डिविजिबल नहीं होगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से तो ये डन है। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन 6 ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 if 4 less than or equal to x less than or equal to 8 and 2 less than or equal to y less than or equal to 7 then what is the ratio of maximum value of x plus y to minimum value of x minus y। ठीक है यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है x plus y और x minus y का तो what is the ratio of maximum value of x plus y इसका maximum to the minimum value of x minus y ये क्वेश्चन में बताना है। और x का दिया है x जो है 4 और 8 के बीच में होगा
एक्स क्या है, एक्स जो है चार, चार या चार से बड़ा है, और आठ या आठ से छोटा है। ठीक, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, चार, पाँच, छ, सात, आठ हो सकता है। वाई के बारे में क्या दिया है, वाई जो है टू या टू से बड़ा, सात या सात से छोटा। तो यहाँ पे वाई जो है दो हो सकता है, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ये सब हो सकते हैं। तो एक्स प्लस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू जो देखते हैं, एक्स प्लस फाइव का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो एक्स अगर आठ हुआ तो मिक्स आएगा, एक्स अगर आठ हुआ तो वाई जो सात हो जाएगा, तो आठ सात 15 हो जाएगा, आठ सात 15, आठ सात 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गई। एक्स माइनस वाई का मिनिमम, मिनिमम एक्स और वाई को मिनिमम कैसे होगा, मिनिमम मतलब वाई मैक्सिमम होगा। तो ये जो मतलब एक्स माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू कब होगा, वाई वाई मैक्सिमम होगा, और ये मिनिमम तो फोर माइनस एक्स मिनिमम होगा, और वाई मैक्सिमम होगा, तो ये हो जाएगा -3। -3 तो ये कितना हो जाएगा, 15, 15/3, -15/3। -5 देखो ना, 99, ठीक है। तो ये -15/3 हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिजल्ट आ जाएगा 3 1 3 5 या -5। ठीक, तो मतलब एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम 15 है, और एक्स माइनस वाई का मिनिमम यहाँ पे -3 आ रहा था। तो 3 1 3 5 जो, तो ये -5 आ रहा है। तो ये तीनों ए बी सी डी, तो इसमें नन ऑफ द एबव आएगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो रिजल्ट है -5 आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे जो नन ऑफ द एबव है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। Let both p and k be prime numbers such that p square plus k is also a prime number less than 30. What is the number of possible values of k? Let both p and k be prime number such that p square plus k is also a prime number less than 30. What is the number of possible values of k? Let both p and k be prime number. Let p and k क्या प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जो एक या एक से भाज्य होगा और अपने किसी और से भाज्य नहीं होगा, खुद एक और अपने खुद के नंबर से ही भाग होता है, वो अभाज्य नहीं होगा। क्योंकि इनके प्राइम नंबर सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज आल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस के जो है वो भी प्राइम नंबर है, ये आल्सो प्राइम नंबर लेस देन 30, लेस देन 30। ये आल्सो प्राइम नंबर लेस देन 30। व्हाट इज द नंबर ऑफ possible values of k? What is the number possible value? What is the name possible value of k? ठीक, तो ये मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। पी एन की अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है। पी स्क्वायर प्लस के, ए भी प्राइम नंबर है,
जो कि लेस देन 30 है, लेस देन 30, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, इट इज नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, नंबर संख्या है, पॉसिबल वैल्यूज मतलब के का पॉसिबल वैल्यूज बताना है, ये भी प्राइम नंबर है, चार है पांच, कितना वैल्यू पॉसिबल है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू का नंबर संख्या वो बताना है। तो ये यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन है और रीजनिंग भी है, एप्टीट्यूड भी है। ठीक है, तो पी एन के प्राइम नंबर है, पी एन के प्राइम नंबर है, ठीक, पी एन के प्राइम नंबर, तो पी एन के प्राइम नंबर है पी, अगर मतलब पी को वन लेते हैं और के को भी वन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना, 1 + 1 मतलब 2, ये भी प्राइम नंबर है, ऑल्सो प्राइम नंबर, लेस देन 30, लेस देन 30, तो लेस देन 30 तो नहीं, लेस देन 30 है, लेस देन 30 है नहीं, तो ये पॉसिबल है, तो के का एक पॉसिबल, के एक हो सकता है, तो दूसरा P1 है और K2 हो जाता है, अगर K2 तो 1² + 2 = 3, ये पॉसिबल है, K = 2 हो सकता है, K = 3 हो गया, 1² + 3, चार है तो नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, के अगर 4 होगा, के 4, 1² + 4, 5, ये हो सकता है, K = 4 हो सकता है, 1 और 4, 5, 1 5 से नहीं होगा, 1 6 होता है, 7 ये हो सकता है, K = 6 हो सकता है, 1 7, 7 एक 8 नहीं होगा, 1 9, 8 8 एक नहीं होगा, 1 9, 9 10 नहीं होगा, 1 11, 11 नहीं होगा, 1 12 नहीं हो सकता, 1 × 12, 1 × 12 हो सकता है, ये भी क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो ये तो नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, ये भी नहीं पॉसिबल, ये क्या होगा, तो क्या, ये क्या होगा, पता नहीं है, ये 14, ये 14 होगा, 15 हो जाएगा, ये तक नहीं,
first 100 prime numbers. वन को नहीं लेते हैं. We will not consider one as a prime number, right? Thank you. So for this question, question number 7. Question number 7 we have C p square plus k. One is not considered as a prime number because 2, 3, 5, 7, 11, 30, 70, 90, and then 23, 29. So chances is P is 2 in 4, 3. Then P is 2 and K is 3. Then P square is 4 plus 3 is 7. So is also a prime number. So this will be one option. Possibilities. And second, 2 and 4. In cage 5. If k is 2, then 6 is not a prime number. So if k is 5, then 9, it is not a prime number. 4 plus 11, 15 not a prime number. 4 plus 13, 17. 4 plus 2 and 30 is possible. Which of 4, and second 2 is 2, 4 plus 17, 21 not 4, 19, 23 is possible. 2 and 2 and 19 is possible. 2 and 4 plus 23, 27 not possible. 4 plus more than 30, so it's not possible. C option. If P is 3, then 3 is 9. K is 2, then 11. So 3, 2 is possible. If P is 3 is 9, 3, 9, 11 is a prime number, 3, 2. And then if we and then P is 3 to P 3 9 to 11 is possible. And P 3 and K 3 12 not possible. If P is 3 9 plus 5 is possible. 9 plus 10 not possible. 9 plus 11 not possible. 9 plus 13 not possible. 9 plus 17 not possible. 9 plus 19 not possible. 9 plus 3 more than 30 not possible. So this comes in and P is 5, then 25 and 2, that is not possible. 25 plus 3, it is not plus 25 plus 7, not possible. 1, 2, 3, 4.
Then we do for it's again here. So we have prime number 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Right. So first P, if P is 2 and K is 2, then P square 4 plus 2, 6 not possible. 4 plus 3, 7 possible. 4 plus 5 not possible. 4 plus 11, 15 not possible. 4 plus 13, 17. So 2, 2, 13 possible. 2, 4 plus 17, 21 not possible. 4 plus 19, which are this is possible. 4 plus 29 not possible. Greater than 30 not possible. Yes, so this is the thing. And so combination for P2, this will be 2, 3, 13 to 19. Now for going for 3, we have to rub this. Now if P is 3, A is 2, 9 plus 2, 13. P is 3, 3, 3 is 9, 11. 9 plus 2, 11. So this is possible, 3, 2. 3, 2 possible. 9 plus 3, possible. 9 plus 5, possible. 9 plus 7, possible. 9 plus 11, possible. 9 plus 13, 9 plus 11, possible. 9 plus 19, possible. 9 plus 23, but is not possible. This is not possible. Then for 5, 25 plus 2, this is not possible. 25 plus 3, 28 not possible. 25, 7.
7 2 and 7 भी possible है, 2 and 4. अच्छा, yes, 2 and 7 is also possible. So this is the solution. For 2 E2 and K 7. So 2 square plus 7, 4 plus 7 11. So this is also possible. So 2 and 7. So right, so we can say the possible values for K will be, possible values of K will be 2 3, 2 7, 2 13, 2 19, and 3 2. Right. So we have number 1 2 3 4 5. So in this way, correct answer will be option B. So which is the correct answer for this question. So only 5 numbers are possible for K to be prime, and also P square plus K is also prime and less than 30. And so in this way, we have seen this question. Now we'll move on to the next question. Next question है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8. There are n sets of number each having only 3 positive integer with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1. What is the value of n? The LCM and HCF का question है. Because there are n set of number each having only 3 positive integer with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1. What is the value of n? There are n sets of number. N sets of number है. नंबर सेट कैसे होता है, जैसे कि 1 2 ऐसा करके मतलब 5 6 7 ऐसा कुछ सेट है. ठीक है. नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव, ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर with each having only 3 पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव नहीं है. with LCM equal to 1001 and SCM equal to 1. What is the value of n? तो अभी सेट कितना सेट ऐसा बन सकता है, 6 सेट 7 सेट 8 सेट. उसमें सेट में क्या है, हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर ही है विद एलसीएम इक्वल टू 1001, एचसीएफ इक्वल टू 1. वैल्यू ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है. एलसीएम एचसीएफ का है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. There are n sets of each having only 3 positive integer with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1. Least common multiple, highest common factor. मान लो n सेट है, 6 सेट है, 6 सेट है.
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री पॉजिटिव इंटीजर, एक दो तीन, 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 ठीक है। एलसीएम, जो एलसीएम है 1001, एचसीएफ है 1 है, लीस्ट काउंट मल्टीपल 1001, मैक्स काउंट फैक्टर 1। ठीक है यार, एक मिनट, शिवा है। 3 नंबर, हाँ हाँ, 3 नंबर है, उसका एलसीएम निकालना है।
तो इस टाइप से जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 था। देर आर n सेट्स ऑफ नंबर each having only three positive integer with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1, what is the value of n? बेसिकली हमें जो तीन नंबर है ना उनका एलसीएम 1001 करना है एंड एचसीएफ 1 करना है। एज कॉमन, एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 करना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1001 करना है। तो यही मेरा टास्क है। तो यहाँ पे बेसिकली 1001 है तो इसको मतलब तीन नंबर का है ना, तीन नंबर को मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए। तो इसके 1001 किससे किससे डिविजिबल है वो पता करना पड़ेगा। ठीक, वन से तो नहीं होगा, तो वन से मतलब काउंट नहीं है, दो से नहीं होगा, तीन से भी नहीं होगा, चार से भी नहीं होगा, पाँच, छः से भी नहीं होगा, सात, सात से देरी है, सात एक सात, तीन, सात चौक 28, सात के 21। तो इससे हो रहा है कि सात एक आ गया। ठीक, सात से जा रहा है तो 143 से 143। ठीक, तो ये 143, 143 को देखते हैं किसे किसे जाएगा। ठीक है, 11 से जाएगा, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, तीन, 11 तिया 33, 11 और 13। ठीक, तो इस तरह से तो यहाँ पे तीन नंबर हमें मालूम हो गया, 7, 11 और 13। ठीक, तो इनका एलसीएम निकालते हैं तो 1001 आएगा। रिसीव हैश कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब ये 1 7 है, 11 × 1, 13, 13 × 1 है, तो इसमें यही हैश कॉमन फैक्टर 7 है और डिवाइड नहीं कर सकते, तो सेव भी 1 आ जाएगा इसका।
इस तरह से यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पता चल रहा है इसके जो मोर देन 8 मोर देन 8 पॉसिबल यहाँ पे है। बहुत सारे इसमें पॉसिबल बनेंगे, बाकी जो इसका सॉल्यूशन है हम लोग यहाँ से निकालेंगे। जो एलसीएम है ना, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 1000 बनाना चाहिए मतलब उसका। और उनका एचसीएफ जो 1, तो इस टाइप से यहाँ पे मोर देन 8 है, बहुत सारे यहाँ पे बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 9 विल मूव आउट, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है मोर देन 8। ठीक है, 8 से ज्यादा बनेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, let PQR be 3-digit number, PPT be a 3-digit number, and PS be a 2-digit number. Here PQR, ST are distinct non-zero digit. Further, PQR minus PS is equal to PPT. Q is equal to 3 and T less than 6. Then what is number of possible values of R and S? ये भी नंबर सिस्टम से है। यहाँ पे PQR भी 3 डिजिट नंबर, ठीक है। PQR ये क्या, 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 3 डिजिट नंबर। पीपीटी भी 3 डिजिट नंबर, पीपीटी ये भी क्या, 3 डिजिट नंबर है। एंड पीएस भी 2 डिजिट नंबर, पीएस 2 डिजिट नंबर है। पी क्यू आर एस टी आर डिस्टिंग नॉन जीरो डिजिट, डिस्टिंक्ट है, अलग है, नॉन जीरो डिजिट है, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट डिजिट है, डिस्टिंक्ट जीरो डिजिट है। अलग अलग है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है। फर्दर पी क्यू आर माइनस पी क्यू आर माइनस पी एस इक्वल टू पी पी टी, ये भी दिया है। एंड क्यू इक्वल टू 3 भी दिया है, एंड टी लेस देन 6 है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एस? यहाँ पे आर और एस का पॉसिबल वैल्यू बताना है। 2 है, 3 है, 4 है, मोर देन 4 है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं इसको। 3 डिजिट नंबर, पीपीटी भी 3 डिजिट नंबर, पीएस 2 डिजिट नंबर, none pqr minus ps equal to ppt, and q equal to 3 and t equal to 6 less than 6, then what is the number of possible values of r and s? r and s का पॉसिबल वैल्यू बताना है। ठीक है, r and s का पॉसिबल बताना है। What is the possible values of r and s? t लेस देन 6 है, t अगर 5 होता है तो p q 5 हो जाएगा।
ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर बन के आएगा 3, बी द करेक्ट आंसर। तीन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एन एस है, वो तीन पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर एन एस, आर एन एस यहाँ पे इसका जो 3 नंबर पॉसिबल वैल्यूज है उसको 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आज के सेशन क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ ए बी dash CC dash A dash B CC C dash B B C dash C that follows a certain pattern. Which one of the following will complete the sequence? ठीक है, तो ये इसको देखते हैं हम लोग। ये मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है। ये मतलब एक सीरीज दिया है, उसमें से कौन सा आएगा बताना है। जैसे ए बी है, डेश है सी सी डेश ए डेश बी सी 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 डेश बी बी सी डेश सी। टोटल कितने नंबर को काउंट करना रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 है इसमें। 18 तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 6 6 से अगर करते हैं कितना, ए बी सी। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ऐसा अब यहाँ पे देख सकते हो, ए बी है, ए बी बी, ए बी बी आएगा, सी सी सी। ठीक, तो ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी। ठीक, तो आ गया क्या क्या आ गया? बी आ गया, सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया, सी आ गया। ठीक, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी, बी सी बी, बी सी बी ए सी। ठीक, बी सी बी ए सी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी B C B A C. C. C will be the correct answer for this question. Right, guys? So I hope you enjoy my session. We have seen 10 questions of C सेट जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आए थे। ठीक है, जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इन दिस वे आई विल कवर ऑल 100 क्वेश्चन ऑफ सी सेट। थैंक यू guys for being here. Bye.